आएंगे नहीं भाई भाई आगे पीछे मत हो। वीडियो वालों को ऊपर चलो। ये कौन बोला? कसा गया भाई? कसा गया भाई? कसा गया? मैम यार Look here, ma'am. Ma'am, look here. Ma'am, look here, ma'am. मैम थोड़ा बॉडी एक्सक्यूज मी आप लोग थोड़ा साइड दादा सिक्योरिटी दादा या मैडम मैम या अरे किती वेळ या मैडम Team. My question is directed to Mr. Niladri Kumar. Sir, I'm a fan of your music, and it's wonderful to see you as in the role of a music director. So, what was it like to don this hat? Namaskar, greetings to everyone. You could say I started my honing my skills as a musician in this studio where probably thousands of sound recordings has happened here. And as a musician, sometimes was not even allowed in a way because the hierarchy of how the music industry is, that as a musician, you're not supposed to go into the monitor room and check out how the mix is sounding and how you play it. And from there to here, when today to be able to do the music for a film or song especially is, I don't know, I mean, I'm speechless in a way. It's such an honor. And the added honor is to have this lyrics written by Sibbal Saab, because when I met him, I actually was like, I didn't know what to say to see his passion at his stature, to have this kind of passion and love. It was like I was standing with a teacup in front of a huge wave. So when the wave trying to fill the water to get some lyrics, but the wave is so huge that the teacup fills up and it empties at the same time. So I'm just left with the wet teacup. So that is the feeling when you are with such a stalwart. And then to have this song featured in a movie which has one of the most brilliant star cast, really. What actors, brilliant. So it was, I just have one word, overjoyed. Thank you. Thank you. I have one more question, please. This is for Mr. Jimmy Shergill. What's your journey been like from the soft romantic boy in Mohabbatein till now, playing the rough guy? Good evening, everyone. I think the journey started with a film called Machis, which was directed by Gulzar Saab, and then Mohabbatein, and now finally Shorgul. So, ठीक है, बहुत अच्छी रही है. I think it's been slow, it's been steady, and suddenly the boat is being rocked a bit because of the issues being created with the projection of the film, because at the end of the day, let's come back to Shorgul, and I think it's a beautiful love story with the backdrop of politics, and a film which deals with humanity. I think that's the reason why most of the actors said yes to doing this film or being part of this film, was because above politics, above religion, it talks about humanity. And what was your greatest challenge being in this film, playing your role? The challenge to yahi tha ki I had never played a role like this, a politician that also very ambitious, and he can go to any extent to achieve what he wants to achieve. And I think बहुत कुछ जो है वो आप जब रियल लाइफ में नहीं कर पाते हो तो आप स्क्रीन पे करने की कोशिश करते हो. मैं ज़्यादातर जब मैं स्कूल में होता था, आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन द आर्म्ड फोर्सेस. सो मे बी वो भड़ास मेरी, जब मेरे को लोग किसी भी
चाहे वो पुलिस ऑफिसर का रोल हो, चाहे आर्मी का रोल हो, तो वो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो शायद मेरी ड्रीम थी और उसको जब मैं स्क्रीन पे लाता हूँ बड़े पैशन के साथ लेके आता हूँ, तो वही था। तो अब आई होप कि बहुत ज़्यादा पैशन इसमें भी लोग ना ढूंढें, क्योंकि मैं कभी पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता था। तो बट यस, एक एक्टर की भूख होती है कि जो मैं कर रहा हूँ उसको पैशनेटली करूँ, और अगर वो ऐसी फिल्म है जिसमें लोग आपसे प्यार करने लग जाएं, तो वो वैसा रोल आप उसी पैशन के साथ निभाइए। और जिस फिल्म में आप चाहते हैं कि वो आपको हेट करें, तो आप उसको भी उतने ही पैशन के साथ निभाइए, ताकि वो बाहर निकल के बोलें यार ये बहुत खतरनाक था। Thank you so much. तो ये सब खड़े हुए हैं ना जो ये करवाने वाले, तो क्या लुक है, क्या है, सब कुछ तो आई थिंक सबसे बड़ा जो है वो जो अपना क्रेडिट जो है किसी भी कैरेक्टर को लेके या उसकी लुक को लेके, आई थिंक वो डायरेक्टर को और उनकी पूरी टीम को जाता है। चाहे वो डायरेक्टर हो, क्रिएटिव डायरेक्टर हो, इन लोग की पूरी एक टीम होती है, जो राइटर्स जो बैठ के वो डिस्कस करते हैं। मुझे इस वाली में सिर्फ यही था कि I never wanted this character to visually come out as a साहिब, जो साहिब बीवी गैंगस्टर पार्ट 1 और 2 में मैंने किया है। तो मेरे को सिर्फ वही एक चीज ऐसी थी कि ऐसा ना निकल के आए। तो उसके ऊपर जो इन लोगों ने मेहनत की थी कि भाई ये नेता है, सो इसने वो कुर्ता पजामा टिपिकल नेता वाला पहनना है, उसको थोड़ा सा अलग कैसे करना है, वो इन लोगों ने उस चीज के ऊपर काम किया था। और इस टाइप की आई थिंक लुक भी मैंने किसी और फिल्म में ऐसी नहीं रखी है। तो आई थिंक एक मेहनत जाती है सबसे पहले फॉर द कैरेक्टर की उसकी लुक क्या होगी, और उसके बाद डायलॉग्स आई थिंक अगेन इस फिल्म में भी कुछ बहुत कुछ तो आपने ट्रेलर में ही देख लिए हैं, और बाकी सारे जो हैं वो देखेंगे। तो मैंने बुलेट राजा में मेरा एक सीक्वेंस था जो मोन्टाज के अंदर आता है और गाने के ऊपर है, तो उसमें एक रैली थी जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, जहां पर आप एक भाषण दे रहे हैं। तो वो करते हुए मुझे बहुत मजा आया था, और मुझे ऐसा लगा था यार ये मैंने ऐसा लाइफ में कभी नहीं किया है कि इतने हजारों लोग हैं और उनके सामने आप वो चीजें जो हैं उस हिसाब से उनको। बट आई न्यू दैट इट इज कमिंग एज अ मोन्टाज, वो गाने के ऊपर आएगा तो उसमें कोई डायलॉग्स नहीं आएंगे। तो जब ये रोल मुझे ऑफर हुआ था तो इसमें कई सीन्स ऐसे थे जो 3-3, 4-4 पेज के, 2.5 पेज के, जिसके अंदर की बहुत बड़ी बड़ी रैलीज को आपने एड्रेस करना था। तो वो एक चीज जो है मैंने वो मंच के ऊपर चढ़ के वो फीलिंग जरूर ली जो आई थिंक पॉलिटिशियंस शायद लेते हैं। Hi Jimmy, this is Vedita Oye from Lahari TV over here. Acha, I wanted to ask you, is this your role inspired from real life politicians? जी नहीं मैम, ये एक सिंपल सी चीज है कि जब कोई फिल्म बायोपिक होती है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, और कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर इतना बेवकूफ नहीं होता है कि वो प्रोसीजर को ना फॉलो करे, क्योंकि उसके बाद एंड में आपके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होगा, ना सेंसर बोर्ड आपके साथ खड़ा होगा, ना सेंसर बोर्ड उस चीज को पास करेगा, ना कुछ होगा। तो जब बायोपिक होती है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। आप जिन लोगों के ऊपर बना रहे हैं वो कहानी, उनसे जाके आप मिलते हैं, उनसे एनओसी लेते हैं, उनको कहानी सुनाते हैं कि ये हमारी कहानी है। उसके बाद आपके जो एक्टर्स हैं वो उन्हें जाके मिलते हैं कि इनका मैनरिज्म्स क्या है, ये ड्रेसअप कैसे करते हैं। पहले तो कास्टिंग ही उस हिसाब से होती है कि अगर किसी आदमी से मिलता जुलता रोल है तो वो कैसा देखने में लगता है, तो वैसा ही एक किरदार जो है, एक एक्टर जो है, आप उसको उस किरदार में लेके आते हो। तो ऐसा हमारी फिल्म के अंदर कुछ नहीं था। और प्लस सेंसर ने फिल्म देखी है। सबसे पहली प्लेट, आप सब तो यहाँ पे जानते ही हैं, इतनी फिल्मों की प्रमोशंस होती है कि सबसे पहली प्लेट ही ये होती है कि ऑल कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म आर फिक्टिशियस एंड बेयर नो रिजेम्बलेंस टू एनीबडी, एंड एनी पर्सन लिविंग और डेड बेयरिंग एनी रिजेम्बलेंस इज कंप्लीटली कोइंसिडेंटल। तो वो प्लेट जो है वो इन इटसेल्फ एक तरीके से वो प्रूफ होता है उस चीज का। तो बाकी फिल्म जो है, इवेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरे देश भर में कहां कहां ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जिनको पिरो के हमने इस कहानी में, जो कि यूपी में बेस्ड है, वहां पर किया गया है। इट वाज आई थिंक कहीं ना कहीं फिल्म के लिए इट्स वेरी गुड दैट पीपल आर ब्रिंगिंग अप ऑल दीज थिंग्स दैट रियल लाइफ पे बेस्ड है सारा कुछ है, विच इज वेरी गुड फॉर द प्रमोशन ऑफ द फिल्म। आई थिंक फिल्म जो है, जब छोटी फिल्में के पास, छोटी फिल्मों के पास वो नहीं होता है जो बड़ी फिल्मों के पास होता है कि एक बार धमाके के साथ आए और पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि ये फिल्म सच एंड सच डेट को आ रही है।
तो आई थिंक वो उस हिसाब से आई थिंक इट इज मेकिंग हेड्स टर्न, इट इज पीपल आर दिस थिंग. द ब्यूटी इज दैट द नॉर्मल ऑडियंस इज लविंग द प्रोमो. तो इसी तरीके से जितने ज्यादा लोगों को पता लगेगा, वो लोग जाके फिल्म को पहले दिन देखेंगे, उन्हें फिल्म पसंद आएगी तो उतने ही ज्यादा लोगों को अगले दिन भेजेंगे. आप समझ रहे हैं? दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट. एंड एज फार एज आई एम कंसर्न, कोई बायोपिक नहीं, इट्स अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी सेट amidst this crazy world of politics. मुझे मैं मेरे गाने वाने नहीं है पिक्चर में. मैं थोड़ा खतरनाक टाइप का कैरेक्टर है मेरा, बहुत उस टाइप का बहुत पावरफुल एक रोल है जो लाइनों से भी आपको पता लग रहा है. तो मैं आई थिंक ऐसा कैरेक्टर मेरा अगर गाने वाने गाने लग जाएगा तो बड़ा अजीब लगेगा. तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा वो म्यूजिकल चीजों से मेरे को उसकी वो नहीं है अभी जानकारी. सर वो डेफिनेटली बाकी की टीम जो है दे विल प्रोवाइड यू विद दैट डिटेल्स. हेलो कपिल सर, नमस्ते. मेरा प्रश्न कपिल जी से है. सर, आप एक बड़े पॉलिटिशियन हो और आपने हाल ही में एक बुक भी लॉन्च की है, एल्बम, और प्लस अभी आप जो लिरिक्स लिए इस मूवी के लिए, कैसे आप टाइम निकाल रहे हो? एक तो बात वो है, और सेकंड थिंग, ऐसे कई लिरिक्स आपके पास हो तो उसमें आपका ये पैशन कैसे बढ़ गया, लाइक अबाउट राइटिंग लिरिक्स? नहीं, मैं शुरू से ही लिखने पढ़ने का शौक था. वो बढ़ता गया. जब मैं स्टूडेंट था तब भी लिखता, और फिर मैंने 2 किताबें भी अंग्रेजी की पोइम्स की पब्लिश की हैं मैंने. और मुझे ऐसा लगा कि अंग्रेजी की पोएम ज्यादा चलती नहीं है क्योंकि ऑडियंस बहुत कमती है, तो क्यों ना हिंदी में शुरुआत की जाए. तो पहले तो बहुत झिझकता था कि मैं लिख भी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन जब प्रयास किया तो ठीक ठाक लगा. और कुछ मेरी अंग्रेजी की जो पोएम्स थी उर्दू में ट्रांसलेट हुई, उसको म्यूजिक दिया गया. और गुलशन कुमार जी मेरे पुराने दोस्त और क्लाइंट भी थे, तो भूषण जी को मैंने कांटेक्ट किया और वो हंसने लगे. सोच रहे थे कि ये पॉलिटिशियन आदमी है, ये कैसे लिख पाएगा. तो आए, वो दिल्ली आए. उन्होंने जब सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया. फिर प्रीतम वगैरह के साथ मेरी मुलाकात करवाई. तो कई गाने जो मेरी प्राइवेट कलेक्शन में हैं अभी भी मेरे पास हैं, दे वर पुट टू म्यूजिक. तो मेरे लिए हरिहरन ने गाया है, अरिजीत ने पहले भी गाया है, दिया है, और कई लोगों ने म्यूजिक दिया है. वो मेरी प्राइवेट कलेक्शन है. और फिर ये सोदारा ने 2 मौके मिले. एक बंदूक में मेरा डुएट मैंने लिखा था, और फिर इस दौरान ये मौका मिला. तो मैं समझता हूं कि स्क्रीन द्वारा ही जो आपके साधारण विचार हैं वो जनता के बीच पहुंच सकते हैं. और ये बहुत बढ़िया मीडियम है. और अगर आपको एक एक्सेप्शनल म्यूजिशियन मिल जाए जैसे नीलाद्री जी हैं, और एक एक्सेप्शनल टैलेंट मिल जाए, तो समझ लीजिए कि सोने में. आई थिंक इस मूवी के द्वारा जो लिरिक्स मैंने लिखे हैं, जिसकी वजह से जो सोल है लिरिक्स की वो नीलाद्री जी ने दी है, तो जब जनता तक पहुंचेगी तो उनको ये समझ में जरूर आएगा कि मोहब्बत के द्वारा कोई और रास्ता जिंदगी में है ही नहीं. नहीं, पहले मुझे सुनाई गई, और फिर नीलाद्री जी मेरे पास आए, और फिर मतलब कई महीने लगे ये लिरिक्स लिखने में, क्योंकि उसको स्टोरी के साथ जोड़ना, डायलॉग के साथ जोड़ना, वो इमोशन जो सबटेरेनियन फैक्टर है सारी फिल्म में, उसको लिरिक्स के साथ जोड़ना ये कोई आसान काम नहीं होता. और मैं तो बड़ा अनाड़ी हूं इन चीजों में, तो मैंने प्रयास किया और ठीक ठाक ही लग रहा है. हाँ, जरूर सुनेंगे, जरूर लिखेंगे और सुनेंगे. लेकिन ये इन्होंने सही कहा जिमी जी ने कि भैया एक्टर को पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहिए और पॉलिटिशियन को एक्टर भी नहीं बनना चाहिए. ये बहुत जरूरी है. पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन ही रहना चाहिए और एक्टर को एक्टर ही रहना चाहिए. और कुर्ते पजामे में भी नहीं आना चाहिए ऐसे जैसे प्रोग्राम में.
My question is Suha ji. Hi. Actually, actually, I have a certificate as a lifeguard, and but still, it was extremely under the water, and it was quite a long day of shooting, and I had only one problem, that was the dress. That was extremely tight, so I couldn't breathe properly, and but still, the by the end of the day, we made a really amazing work, and the teamwork was very fine. And I had a lot of support down under the water, and now I'm seeing it for the first time, and I'm really excited. It looks amazing. Yeah, but as a lifeguard, it was very difficult for me as well. So yeah. Training nahi kiya, but like I'm doing mostly swimming twice a day. So and then before the shooting, I started to hold my breath under the water and swimming how to say, for a longer time than an hour. So preparation किया मैंने, फिर भी end में थोड़ा सा मुश्किल हो गया. My character in the movie, she is a very innocent and lovely girl, and she has a beautiful friendship with Raghu. She's they're growing up together, and then she's about to get married to Salim. So she is very kind, and she loves everyone. Everyone loves her. She's all the time smiling. And in this movie is actually the story about Zainab, how her life changed completely. And when I read about the script and I met Pranav, so I was, in the first second, I felt very connected to Zainab. And so mostly of the time, I was also completely all the time thinking, like Jimmy Sir also said, what kind of a look you're giving to the character. So, and I thought maybe a little weight gaining, that she should have the look of a normal village girl. And yeah, that's her character. She's actually not thinking about anything. She is completely fine with her life. And everything is normal, lovely, college. Yeah, that's it. सभी को मेरा नमस्कार. टेलीविजन अभी भी कर रहा था, और ये सफर जो है, खास तौर पे मैं बोलूं तो पिछले कुछ सालों में टेलीविजन में और फिल्म में कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा. अंतर सिर्फ पर्दे का है. इनेक्टमेंट, अभिनय वही चीज है. बस ये है कि थोड़े से पैमाने बदल जाते हैं, बजट बदल जाता है, चीजें और जगह बदल जाती है, और साथ के जो को एक्टर्स होते हैं वो बदल जाते हैं. तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस जो है वो अब नहीं रहा है, तो करने में भी मजा आता है. और मैं इस फिल्म में जब आया तो उस समय भी मैं एक सीरियल कर रहा था, उस समय सब टीवी का यम है हम. तो प्रणव से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा है, फिल्म है, 10-15-20 दिन का काम है, ऐसा है. तो मैंने कहा यार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. लेकिन जहां पता लगा कि सिब्बल साहब हैं, गाना मुझ पे फिल्माया जाएगा और जिमी वहां पर हैं, आशुतोष जी वहां पे हैं, तो मैंने कहा इन लोगों के साथ काम करने का एक अपनी एक अलग मजा है, एक अलग रवानगी है. तो बस उस चीज को मान के आगे बढ़ गए और फिल्म आपके सामने है. और सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, और खास तौर पे कुछ एक सीक्वेंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें जो एक डेथ सीक्वेंस होता है रघु का, और जो स्ट्रगल है जैनब का, और जिस तरीके से एक तरफ पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है और उस तरफ पूरा एक जो एक सफर जो है, पूरा एक क्रेसेंडो जो है फिल्म का, इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड, एंड डेफिनेटली पीपल वुड वॉच एंड दे वुड लव माय वर्क. थैंक यू सो मच. माय क्वेश्चन इजाज, ये आपका रोल यहाँ ये आप विलेन का रोल अदा कर रहे हो, तो क्या आप बताएंगे कुछ इसमें कितना आपका खून खौल उठा? गुड इवनिंग. यार मैं इसको जो कैरेक्टर में प्ले कर रहा हूँ मुस्तकीम, उसको विलेन नहीं कहूँगा. मुझे लगता है कि हम जब एक्टिंग करते हैं, जो भी करते हैं उसे एक बैक स्टोरी देते हैं, जस्टिफाई करते हैं उनके एक्शंस, और किसी के लिए भी जो भी आप करते हो वो गलत नहीं होता. इंस्टिंक्टिवली उस वक्त आप समझते हो कि आप सही कर रहे हो. सो मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म में जो मुस्तकीम ने जो भी किया या जो
कर रहा है या भड़काया गया वो सही है, लेकिन बस ये कह रहा हूँ कि मुझे वो नेगेटिव नहीं लगा। और खून कितना खोला, वो तो गर्मी से ही खोल रहा था और कुछ नहीं। कुछ 48 डिग्रीज थे वहाँ, बिना पंखे के भी हम शूटिंग कर रहे थे। बहुत सब ने बहुत मेहनत की। इनफैक्ट सुहा बेहोश भी हो रही थी, उन्होंने मुझे कुछ 25 टाइम थप्पड़ मारे थे, बस तभी खून खोला, नहीं तो बहुत ठंडे थे हम। शुक्रिया। Yeah, I guess so. We just saw the Madari trailer a week or so back, and now this. So I guess, yeah. कपिल जी, काफी कितने संतुष्ट लगे आपको ये एक नेता की भूमिका में? जिमी, वो कुछ अच्छी तरह से निभा रहे थे। नहीं, आप तो इतने सारे मतलब अपोजिशन और खुद मैं ऐसी एक्टिंग मैंने पॉलिटिशियन में नहीं देखी। किससे सीखा? मतलब ये कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष, ये तो इनसे पूछना पड़ेगा। क्या है सर कि आजकल ना आप लोग क्या करते हो कि ट्रेलर ही देख के बस एक्टिंग को ग्रेड करने लग जाते हो, क्या किया है काम यार, ये है वो है। ऐसा वो पिक्चर भी देख लो, उसमें भी अगर अच्छा काम किया तब बोलो। अभी तो क्या चक्कर है कि वो ट्रेलर देखे क्या एक्टिंग की है। अरे ट्रेलर में क्या एक्टिंग होती है? ट्रेलर में तो कट कट के चीजें आई हुई हैं, एक्टिंग तो दिखती नहीं है ट्रेलर में। तो किरदार आपका दिखता है कि भाई ये है वो है। पर आजकल वो बड़ा अजीब सा हो गया कि ट्रेलर को ही देख के लोग बोलने लग जाते हैं क्या एक्टिंग की है यार, क्या एक्टिंग हो। पहले पूरी पिक्चर देखो तब बोलो। क्या पता पिक्चर में बहुत गंदी एक्टिंग की हो। आप समझ रहे हो ना? बाकी ये किरदार जो है ये कोई फिक्टिशियस पार्टी है जो आपको दिखेगी उसके अंदर, उसका किरदार है, फिक्टिशियस किरदार है। और थोड़ा सा है खतरनाक भी है, पावरफुल भी है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी है, बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहता है और इसकी अपने तरीके की थिंकिंग है। और ऐसा नहीं किया था किरदार पहले, तो इसलिए किया है। किसी पॉलिटिशियन मतलब जो आपको मतलब जिसको आप मानते हो, जिससे कपिल जी के अलावा? नहीं यार, मैं किसी से प्रभावित होके अगर करने लग गया तो फिर तो वो बायोपिक। नहीं, वैसे नहीं, मतलब वैसी वास्तविक जीवन में घुमा के लाए हो क्वेश्चन। और वही मैंने कहा था, अगर बायोपिक होती तो मैं जाता, मैं उस आदमी की मैनरिज्म्स देखता किसी भी इंसान के ऊपर। बाकी किरदार भी अगर किसी की रियल लाइफ पे बेस्ड कोई किरदार कर रहे हैं, एनी एक्टर वुड गो एंड सी द मैनरिज्म्स, और वो कैसे उठता है, चलता है, क्या कपड़े पहनता है, कैसे बोलता है। आप समझ रहे हो? नहीं, मैं नहीं समझ रहा सर। मैं लेकिन सवाल ही एक्चुअली मेरा ये है कि मतलब वास्तविक जीवन में जैसे कि हम लोग प्रभावित होते हैं, किसी को एडमायर करते हैं, तो आप किसी नेता को करते हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आशुतोष राणा जी को। वही नहीं आया आज? वो नहीं आया आज। ऐसा क्यों? और क्यों? मैंने जो अगर मैं ये देखूंगा कि किसी किरदार को मैं कैसे अप्रोच करता हूं, तो वो जो है वो हर किरदार के लिए कुछ अलग होगा। अब मैंने फगली में एक बहुत ही नेगेटिव पुलिस ऑफिसर का रोल किया था, तो अब ऐसा तो मैं कहाँ जाके ढूंढता ऐसा वाला आदमी जिसको मैं फॉलो करूं और उससे देखूं कि ये नेगेटिव कैसे करता है या क्या करता है। तो अपने ही दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। डायरेक्टर बहुत सारी चीजें लेके आया होता है कि इसका रंग ढंग ये होगा, इसका चलने का तरीका ये होगा, इसका इस टाइप के कपड़े ये पहनेगा, इस टाइप की लुक होगी इसकी, इस तरीके से वो करेगा। आधी चीजें उसकी होती हैं। तो कई बार हम लोग को फिल्में गुरिल्ला स्टाइल करनी पड़ती हैं कि जो सर रेडी है, सर पूरा अभी पब्लिक रेडी है, 55 डिग्री का टेम्परेचर है, ये सब भाग जाएंगे, जल्दी से आइए और जल्दी से कर। तो कई बार आप सोचते भी नहीं हो कि हाथ ये वाला उठाऊंगा कि वो वाला उठाऊंगा, तो आगे पहले एक उठा देते हो, फिर दूसरा, और फिर दोनों उठा देते हो, और फिर उतनी देर में टेक ओके हो जाता है। बाद में आप देखते हो तो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। तो कई बार चीजें ऐसे भी हो जाती हैं। ठीक है ना सर? समझ गया। तो जरूरी नहीं है कि किसी को देख के या किसी को वो करके ही करना पड़े। नहीं, कपिल जी, मैं आपसे पूछ रहा था, जैसे ये कह रहे हैं बायोपिक के लिए, किस मतलब नेता के ऊपर आप बायोपिक देखना चाहेंगे? किस नेता के ऊपर बायोपिक देखना चाहो? हम देख ही रहे हैं रोज वो नेता। मतलब सर कौन? अब आप समझ गए, कितने समझदार तो हुआ। उनके अलावा आपको जवाब मिल गया। सर ये आपने कितने समय में ये जो लिखा गाना, कितना समय लगा आपको सर?
वक्त लगता है इसमें, काफी 2-3-4 महीने लगे, क्योंकि हम हर वक्त चेंज हो रहा था कि ये इसमें बैठता नहीं है, अरिजीत ऐसे गा रहा है, वो कह रहा है कि आप इसको भी चेंज करो, ये अल्फाज यहाँ बैठते नहीं है, तो चेंज करना पड़ता था। जिमी जी, जैसे आजकल तो कई बार ऐसा भी, जैसे जो ज्ञान मिला है हमें कि मतलब सेट पे ही गाने लिख दिए जाते हैं, तो मतलब आप तो मतलब काफी सोच विचार के मतलब लिखते होंगे फिर। मुझे तो मालूम नहीं, क्यों मैं तो सेट कभी गया नहीं। सर आगे फिल्मों के लिए भी आप कहानी वगैरह या कुछ लिखेंगे ऐसा? नहीं, ऐसा आप पूछोगे मैं एक्टिंग भी करना शुरू करूंगा क्या? नहीं, ये सब कुछ नहीं, मैं शौकिया तौर पे करता हूँ, कोई मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, शौकिया तौर पे मैं करता हूँ और शौकिया तौर पे करता जाऊंगा, मुझे कोई और इंटरेस्ट नहीं है मेरा। प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म, काफी शोर मच रहा है आपकी फिल्म का रिलीज के, काफी संतुष्ट हैं आप इस चीज से? बहुत संतुष्ट हूँ। द क्रेडिट गोज टू द पीआर टीम, सभी को मिलना चाहिए इस चीज का। ओके सर, कई बार जो हम लोग न्यूज़पेपर्स में जो देख रहे हैं, कई ऐसे वाद विवाद की बातें आती हैं, कितना आप इसको सही मान रहे हैं? कई बार डायरेक्टर्स के बारे में बात आती है, कई बार म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में बात आती है, तो आप नहीं, हमारे पास इस तरीके का कुछ नहीं है, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको देख रहे हैं, सभी लोगों से बात कर रहे हो, सभी लोगों से आप बात कर रहे हो, तो उसमें आप देख सकते हो कि हमारी पूरी टीम यहाँ पे है, तो किसी भी तरीके का कोई बात नहीं आ रही है, वो थोड़ा बहुत तो होता ही है। थैंक यू सो मच, शुभकामनाएं आपको फिल्म के लिए। नहीं सर, ऐसे टिप्स तो मैंने नहीं ली, टिप्स बहुत सारी ऑलरेडी लेके आए हुए थे हमारे डायरेक्टर लोग और क्रिएटिव टीम जो है, ये मतलब ऑलमोस्ट जब सीन सुना भी रहे तो कर करके दिखा रहे थे, तो आधा काम तो मेरा वहीं कंप्लीट हो गया था कि वाह यार क्या चार्ज हैं ये लोग, एकदम स्पीच भी पढ़ के सुना रहे हैं तो इतने जोश और उसके साथ सुना रहे हैं, उनका आधा काम तो मेरा वहीं हो गया था। और सिब्बल साहब को मैं उधर लॉन्च पे, मतलब जब हम लोगों ने फिल्म को लॉन्च किया था उस टाइम पे, और बाकी आई थिंक सिब्बल साहब ने जिस तरीके से कहा कि लिरिक्स लिख रहे हैं, लिरिक्स ही लिखते रहेंगे, तो मैं भी बोल रहे हैं कि भाई एक्टिंग नहीं करेंगे और प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे, है ना सर? सो हम भी अपनी एक्टिंग ही करते रहें तो बढ़िया है। अगर ये गुजरात के होते तो फिर वहां गुजरात में बना देते हैं। एक्चुअली कुछ कहानियां आपके जहन में हमेशा होती हैं, आप उनका बैकग्राउंड रचते हो, सोचते हो ऐसे दिखाएंगे, ऐसे करेंगे, तो ये ऐसे ही थी, कुछ चीजें, कुछ घटनाएं हम लोगों के दिमाग में थी, तो एक दिन मैं और प्रणव बैठे हुए थे, हम लोगों ने डिसाइड किया कैसे करते हैं, तो इनिशियली इट वाज प्लान्ड इंटरनेशनली, बांग्लादेश, नहीं, न्यूज़पेपर की तमाम जैसे न्यूज होती है, कोई भी घटना कभी कभी आप न्यूज में पढ़ते हो या कहीं पे देखते हो तो आपको झकझोर सी देती है, आपको लगता है कि यार इस दौर में भी जहां पे इतनी नकारात्मकता फैली हुई है, नेगेटिविटी फैली हुई है, उसमें भी लोग मानवता को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, कुछ बढ़िया कर रहे हैं, तो उससे आप इंस्पायर्ड होते हो, आपको लगता है कि ये कहानियां ज्यादातर लोगों को पहुंचनी चाहिए, ज्यादातर लोगों को ऐसा ही सोचना चाहिए जिससे हमारा समाज लंबे समय तक बचा रहे। तो ऐसे कुछ घटनाएं थी, कुछ न्यूज थी हम लोग के पास में, तो एक दिन ऐसे बैठे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग इंटरनेशनली बनाना चाह रहे थे कुछ इस तरीके का, फिर फाइनली सेटल हुआ नहीं, और चूंकि हम लोग यूपी से ही हैं तो यूपी वाले ड्रामा और पॉलिटिकल ड्रामा इन दोनों को बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, तो इस तरह हो गई सब। बहुत बेहतरीन एक्टर है, मैं इनका बड़ा प्रशंसक हूँ हासिल के दिनों से, तो जाहिर सी बात है मुझे लग रहा था कि ये कैरेक्टर ज्यादा अच्छे तरीके से कर ले, ऐसा ही आदमी हमको चाहिए था कि जो आपने डायलॉग डिलीवरी देखी ना, जिन्हें ये पसंद नहीं यहाँ से जाना होगा, तो ऐसा आप बताओ कोई बोल सकता था क्या? नहीं सर बोल चुके हैं, आप इनके सामने हम क्या बोल तो दिया इन्होंने, बोलते बोलते में यही ऐसे ही स्क्रिप्ट भी सुनाते सुनाते में ये लोग कर देते थे, एकदम बोलते निकल जाते थे। आजकल तो रियल लाइफ में भी मैं ऐसे ही देख रहा हूं। ठीक है ना, हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, आप जितना आक्रमण पॉलिटिशियंस पे करो, बिना पॉलिटिशियंस देश भी नहीं चल सकता, बिना पॉलिटिक्स देश नहीं चल सकता।
आपका संविधान होगा तो पॉलिटिक्स होगी। पॉलिटिक्स जितना मर्जी आप नेगेटिव दिखा लो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको उसके बिना, पॉलिटिशियन बिना देश आगे बढ़ नहीं सकता। तो हम चाहते हैं कि एक ठीक नजरिए से पॉलिटिशियन को देखो। सब पॉलिटिशियन खराब नहीं होते, सब पॉलिटिशियन अच्छे नहीं होते, सब अभिनेता खराब नहीं होते, सब अच्छे नहीं होते, सब मीडिया खराब नहीं होता, सब अच्छे भी नहीं होते, ठीक है ना। तो हर एक में खराबी ना देखो, खामियां ना देखो, अच्छाइयां भी देखो। बैलेंस्ड चीज होगी तो देश आगे बढ़ेगा। सभी पॉलिटिशियंस को आप दिखाओगे कि सभी चोर हैं तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। जो कि इस फिल्म में है, आप सारे पॉलिटिशियंस को गलत नहीं देखेंगे। इसमें कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो अपने उसके लिए कुछ तरीके से कर रहे हैं और कुछ हैं जो अच्छी लाइट में आपको दिखेंगे, जो कि रियल लाइफ में होता है। के बारे में उन्होंने 3 सॉन्ग दिए हमारी मूवी में और काफी अच्छे सॉन्ग है वो भी बाद में भी रिलीज होंगे एक एक करके। नहीं, वो धीमे धीमे आपको सुनने में आएंगे। अब पता नहीं क्या हाँ, हुआ। वही पूछना चाहूंगा कि आशुतोष जी आए नहीं, कुछ कभी महसूस हो रही है उनकी, और क्या रीजन था? He is not well. He is not well. किसी वजह से नहीं आए होंगे और ललित जी भी किसी वजह से नहीं आए यहाँ पे। जी, काफी अच्छे गाने हैं, एक आइटम सॉन्ग है और उसके अलावा 2 गाने। नहीं, वो ललित जी के ही हैं गाने, दोनों तीनों। आइटम सॉन्ग सर का है, आइटम सॉन्ग का लिरिक्स सर का है। मस्त है। देख लेना भैया, अभी बताने का कोई तुक नहीं है इस समय। आप सुनेंगे वो बात। वो वैसा आइटम सॉन्ग नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। आपको पसंद आएगा। हाँ, वो भी अलग है स्टाइल, वो आइटम सॉन्ग भी अलग है। मस्त मस्त हवा मस्त मस्त। We have a last question. Anyone? Last question, please. Anyone for the last question? By the profession, a lawyer. Yes, actually, by choice, I was a teacher. Yes, sir. By accident, I was a politician. And by profession, I am a lawyer. By choice, I was a teacher. I started my life teaching modern history. I entered the law. I, in the meantime, got into the IAS. I did not join. I entered the law. And then accidentally, I became a politician. That's how it all happened. My future plans is to write more lyrics for you guys. Thank you.